Yes, I am audible. गुड इवनिंग सर। Good evening, Vikash. आज हमारा टॉपिक है वी हैव टू डिस्कस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यस, ब्रीफली। यस सर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? Spectroscopy, sir, defines the interaction of light with matter, and we record the results that included in spectroscopy. यस, गुड। व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन आवर सोसाइटी? सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एज डायरेक्टली सोसाइटी में कोई यूज नहीं है। जो रिसर्च वर्ल्ड है उसमें उसका यूज है, मतलब इनडायरेक्ट वे में सोसाइटी में ही हो गया। बट इन जनरल सोसाइटी में इसका कोई वैसे नहीं है रोल, बट रिसर्च वर्ल्ड में ही इसका रोल है। लाइक जब हमें बहुत वी कैन से डीप लेवल में कोई डेटा कलेक्ट करना हो, नॉट नॉट के जस्ट आई बॉलिंग थिंग्स एंड वी आर collecting the data, that is not included in spectroscopy. दी जब हम एनर्जी लेवल्स पे बात करते हैं, पर्टिकुलर लाइट की मैटर के साथ इंटरेक्शन पे बात करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट इज मेड फॉर द रिसर्च पार्ट। और कोई इसका मतलब ऐसे ये नहीं था भी चलो रिसर्च के अलावा भी इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाते हैं, नहीं, इट इज प्रोफाउंडली मेड फॉर द रिसर्च पार्ट। यस, गुड। स्पेक्ट्रोस्कोपी इन बेसिक पार्ट, wavelength. What is wavelength? Wavelength, sir, is we can say the distance between two crests or two troughs of a wave is called the wavelength. Yes. What is frequency? Frequency, sir, at a particular point of wave, how many a complete wave is passing from a particular point in unit time is called frequency. Yes, good. What is wave number? The inverse of wavelength, sir, is called wave number. What is energy? Energy, what is energy? Yes. In a broad sense, we can say energy is equivalent or conversion of mass. If I have to define energy, it is equivalent or conversion of mass. Yes, good. Basic point. Next topic is IR spectroscopy, infrared spectroscopy. What is infrared? So infrared spectroscopy. Okay, so in infrared spectroscopy, we are majorly concerned, means the sole purpose of uh, 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 using IR spectroscopy is to define particular bonds between two different atoms or two same atoms, because a bond is made by what? Two atoms, and a bond is not rigid, it vibrates. So for identifying a particular type of bond, means a particular type of bond vibrates with a particular frequency. So if we find that a particular frequency is present inside the bonds, means that particular bond is present in it. If we find the bond, we find particular atoms. भाई हमें मालूम पड़ गया कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड फ्रीक्वेंसी इस कंपाउंड में आ रही है, सो मींस इसमें मान लो वो एक्स वाई जेड फ्रीक्वेंसी ए और बी एटम्स के बॉन्ड की है। सो हमें ये मालूम हो गया कि इसमें ए और बी का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये मालूम हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि इसमें ए और बी एटम भी प्रेजेंट है। Yes, good. What is the main application of infrared spectroscopy? फ्रीक्वेंसी सर, मतलब अगर ब्रॉड सेंस में कहूँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स जो कौन कौन से इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं,
मतलब इससे इनडायरेक्ट फायदा ये भी है कि हमें एलिमेंट्स का भी मालूम पड़ जाता है कि इसमें सल्फर है या नहीं, या नाइट्रोजन है या नहीं, या सी ट्रिपल बॉन्ड एंड की अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है 2250 पे, तो मतलब इसमें वो फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर प्रेजेंट है या नहीं, या फिर हम सी सिंगल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्डिहाइड है या नहीं, एसिड है या नहीं, कि किस टाइप की बॉन्डिंग है। Yes, तो identification. ये Yes, yes, yes. Good. Identification of functional group. या The identification of two compound, same or different. Yes. जैसे Next is what is IR regions? How many types of IR regions? Presence in infrared spectroscopy. So there are three regions: near infrared, infrared, and far infrared. Far infrared is from 50 to 400 centimeter inverse, and infrared is from 400 to 4000 centimeter inverse. And near infrared is 4000 to 12,000, 12.5 thousand infrared inverse, centimeter inverse. What are the uses of IR regions in spectroscopy? Regions, sir, पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड्स के लिए ये रीजन जो बनाए गए हैं सर, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक जो जनरल हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिटेक्शन करनी होती है वो 400 से 4000 के बीच में ही आती है। तो उसमें भी हमने जैसे एक फिंगरप्रिंट रीजन बनाया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप रीजन बनाया हुआ है। अभी इसके इस रीजन में हमें जो डेटा मिलेगा, एक हमारा कह सकते हो कि माइंड सेट जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया, अभी इसमें तो यही वाला आएगा, तो फालतू का और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप रीजन में अगर कोई पीक आ रही है तो वो इन्हीं इन्हीं रीजन इन्हीं इन्हीं कारणों से आएगी, हमें सारे रीजन सोचने की जरूरत नहीं है। सो हमने एक रीजन डिफाइंड करके कर दिया भी इस रीजन में यही यही स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी बॉन्ड्स की। तो मतलब एज ए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू हमने थोड़ा आसान कर लिया अपने लिए कि मतलब अगर इस रीजन में कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वो इन बॉन्ड्स के लिए ही होगी। Yes, good. In source of near IR, far IR. लिखे थे सर, मैंने कल पढ़े भी थे, माइंड में नहीं आ रहे। Near means Nernst filament. Far mean mercury arc. लेकिन इसमें ये यूज आप देख लीजिए, मेटल कौन सा यूज होता है। जैसे नन्नस फिलामेंट है, ये ऑक्साइड ऑफ हम्म। जर्केनियम, सीरियम, थोरियम, जो ओके। हायर फ्रीक्वेंसी के लिए होती है, जो 1000 से हम्म। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है सोर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट है मरकरी आर्क, तो ग्लोबर जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड रोड होती है, जिसको लोअर फ्रीक्वेंसी पे होता है, टेम्परेचर 1000 से 1800। कौन सा मेटल यूज होता है, कौन सी रॉड होती है, तो उसमें ऑक्साइड होते हैं, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्लियर। ऑलराइट सर। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन IR? सर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस: सिजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग। कैन यू एक्सप्लेन सिजरिंग वन बाय और वन? रॉकिंग जो होगी, सिजरिंग रॉकिंग होती है इन प्लेन वाइब्रेशंस। लाइक इफ आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, this is one atom and these are two atoms, they are combined, so this is scissoring vibration, and this is rocking vibration outside, यस। and twisting is out plane, like this is twisting vibration, this is wagging. यस। So these are the four. व्हाट इज फंडामेंटल बैंड्स?
हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल बैंड्स वो फंडामेंटल होते बैंड? हैं सर जो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेशन होती है ना, जब ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल्स पे एक्साइटेशन होती है तो उसको फंडामेंटल बैंड बोलेंगे। व्हाट इज द यूजेस? सर फंडामेंटल बैंड के यूज ये है कि काफी स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए, और जनरली हम लोग फंडामेंटल बॉन्ड से ही डील करते हैं, क्योंकि जो ओवरटोन्स आते हैं कई बार उनकी इंटेंसिटी हाई आती है, लो आती है, कई बार जो एक एक बॉन्ड का जो ओवरटोन है वो दूसरे बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। सो हम उन्हें जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब कोई हाई प्रोफाइल डेटा एनालिसिस करना हो तो बात अलग है, लेकिन जनरल डेटा एनालिसिस में हम लोग इनको नहीं लेते हैं। एंड फिर आता है हॉट बैंड्स। हॉट बैंड्स होंगे जो फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेशन होगी, सो वो हाई टेम्परेचर पे ही होती है, सो दीज आर सम काइंड ऑफ बैंड्स। हॉट बैंड, यस, हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर्स। यस, अभी आपने बात की हॉट बॉन्ड की, है ना? यस यस सर। हॉट बॉन्ड से पहले ये जो पार्ट्स है, ये आता है हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स। यस सर। का जो कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी और बैंड लेंथ, उस कर्व के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये क्या मतलब क्या होते हैं ये, किस चीज को सर मेजर वे करते हैं? एज आई सेड कि जैसे फंडामेंटल बैंड जो आएंगे वो दो ट्रांजिशंस की वजह से आएंगे जब वो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होगी। फर्स्ट ओवरटोन जब आएगा जब ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड, जैसे एन वी वी इज इक्वल्स टू 1 से लेके वी इज इक्वल्स टू 3 में ट्रांजिशन होगी, या वी इज इक्वल्स टू 4 में ट्रांजिशन होगी, तब आते हैं ओवरटोन्स। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो आते हैं फंडामेंटल बैंड्स। हॉट बैंड्स तब आएंगे जब एक्साइटेशन v इज इक्वल्स टू 2 से लेके v इज इक्वल्स टू हायर लेवल्स पे होगी। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन हो रही हो तब वो उसके हॉट बैंड कहेंगे। हॉट इसलिए होगा क्योंकि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन बहुत लो होती है, वो हाई टेम्परेचर पे ही उस पर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो पाएगी, तभी वहां से ट्रांजिशन हायर लेवल्स पे हो पाएगी। यस, गुड। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एनहार्मोनिक? हार्मोनिक ऑसिलेटर में सर, हार्मोनिक ऑसिलेटर में डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1। इसमें सिर्फ फंडामेंटल बैंड की ही बात कही गई है, ओवरटोन्स हॉट बैंड्स इसका कोई रिलेशन नहीं था एसएचओ में। यस, गुड। नेक्स्ट इज जीरो पॉइंट एनर्जी। व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द यूजेस? जीरो पॉइंट एनर्जी सर बेसिकली डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूलर बॉन्ड। लाइक उससे कम वो उतनी तो होगी ही होगी एनर्जी। लाइक हमने अगर वाइब्रेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो उसमें हाफ एच म्यू नॉट एनर्जी तो होगी ही होगी। दैट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, वो हम निकाल नहीं सकते वहां से। व्हाट इज कपल्ड वाइब्रेशन? कपल्ड वाइब्रेशंस वो होती हैं सर जब जैसे फंडामेंटल बैंड हो गया या ओवरटोन हो गए वो आपस में जब कंबाइन करते हैं। लाइक जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तब इंडिविजुअली कोई भी सारी वाइब्रेशंस ऐसे अलग अलग नहीं होती। लाइक कि ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सारी सुपर इम्पोज होती हैं दूसरे के ऊपर। सो उससे इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है।
सो कई बार क्या होता है कि द फंडामेंटल बैंड गेट्स डीजनरेट, मतलब उसकी एनर्जी इक्वल हो जाती है किसी ओवरटोन के। सो उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है, दोज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन बैंड। ऐसे ही डिफरेंस बैंड भी होते हैं जिनका जैसे एम्पलीट्यूड होगा, लाइक दे डिक्रीज ईच अदर्स एम्पलीट्यूड, दोज आर कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंस कपलिंग। और जिसमें जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा, लाइक जैसे अगर हम एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो हम दोनों की फोर्स जो होगी वो एक दूसरे की फोर्स को काट रही होगी। अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऐड होगी। ऐसे ही वाइब्रेशन बॉन्ड्स जब होते हैं, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे हो रही है कि इन फेज एंड आउट फेज की बात होती है। आप अगर इन फेज में है दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो वो जो उनकी इंटेंसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी, तो दोज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन बैंड्स। और अगर आउट फेस में है तो वो उनकी जो जो इंटेंसिटी होगी वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, तो उनकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, तो दोस आर कॉल्ड डिफरेंस बैंड्स। Yes, like a symmetric and asymmetric band vibration या of a group, that's called coupled vibration. Yes. What is the range of fingerprint region and functional group सर 400 टू 1400, 1450, दैट इज द रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। एंड फंक्शनल ग्रुप की सर 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। what is the uses of fingerprint and functional group region? सर वही सर कि हमने पर्टिकुलर बॉन्ड्स के लिए हमने एक एक मतलब इस टाइप के बॉन्ड्स, लाइक जो फिंगरप्रिंट रीजन होगा वो एक मॉलिक्यूल का एक जैसे एक इंसान की आइडेंटिटी होती है फिंगरप्रिंट। इसीलिए उसको कहा गया है कि ये एक मॉलिक्यूल का जो फिंगरप्रिंट रीजन होगा, वो चेक वो जो कंपाउंड अगर किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट होगा, तो वो फिंगरप्रिंट रीजन तो सेम ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो आगे पीछे हो सकता है ड्यू टू जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, लाइक कार्बोनिल है। कार्बोनेट फिंगरप्रिंट में नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप में आएगा, क्योंकि जो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है। हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा दिया, कॉन्जुगेशन में ले आए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है चेंज, वो किसी कंपाउंड में फिंगरप्रिंट की तरह नहीं हो सकता यूज। Yes, good. What is the effect of hydrogen bonding in IR spectroscopy? आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम बेसिकली करते हैं कार्बोनिल्स में, क्योंकि हाईली जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है वो कार्बोनिल में आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। और सिंपली जैसे मान लो कि ओ एच की है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कार्बोनिल से, सो ओ और एच की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होगी, और जो कार्बोनिल सी ओ की फ्रीक्वेंसी वो भी डिक्रीज होगी। Good. Next is Fermi resonance. What is Fermi resonance? Fermi resonance is defined as the when fundamental band gets degenerate with the overtone combination bands, then energy transfer happens and the intensity of this band gets increased. This is called Fermi resonance. Is good. Yes, IR is completed. Basic. Next topic is mass spectrometry. What is mass Yes, sir. spectrometry? Next topic. Mass spectrometry is a technique in which uh, ionic fragments are formed from the sample, and they are plotted according to their abundance with respect to their mass to charge ratio. Yes, good. हमने सैंपल के इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से हमने आयनिक फ्रेगमेंट्स बनाए, और फिर उनको मास टू चार्ज रेशियो के मतलब स्केल पे हमने सेपरेट किया, और उनको उनकी अबंडेंस के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दिया। Yes, good.
What is the main application of mass spectrometry? सर आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, मॉलिक्यूलर मास के लिए। लाइक हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये फ्रेगमेंट्स बनेंगे, सो इसमें ये मोलर मास की पीक्स आनी चाहिए। अगर वो आ रही हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा। Yes, molecular weight determination, elemental analysis. Two या main applications of mass spectrometry. Yes. What is the difference between difference between spectroscopy and spectrometry? स्पेक्ट्रोस्कोपी में सर हम लोग लाइट मैटर इंटरेक्शन देखते हैं, वहां पे रेडिएशन होगा। स्पेसिफिक थिंग जो मेजर डिफरेंस है वो रेडिएशन का है। वहां पे रेडिएशन होगा कि सैंपल पे हमने रेडिएशन डाली, उसका इफेक्ट हमने स्टडी किया, चाहे वो वाइब्रेशनल इफेक्ट हो, रोटेशनल इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, बीयर लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्बेंस, जो भी हो। स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने लाइट नहीं करी यूज, और कोई सोर्स यूज किया। लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट यूज की, उससे फिर हमने डेटा अपना गैदर किया। सो यहाँ पे ये डिफरेंस है। जैसे थर्मोग्रेविमेट्री, हमने वहां पे टेम्परेचर दिया, ग्रेविटेशन से हमने वेट में मेजर किया, वहां पे कोई लाइट यूज हुई नहीं। Yes, good, good. Next is base peak. What is base peak in mass spectrometry? सर बेस पीक वो होगी जैसे हमने मॉलिक्यूल, जैसे हमने हमने इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट की, आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन जो होगा, दैट जो मॉलिक्यूल बनेगा आयनाइजेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन होगी, उसके बाद हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब जिस फ्रेगमेंट की सबसे ज्यादा अबंडेंस होगी, दैट विल बी दैट विल बी स्पेसिफाइड एज बेस पीक। और जो मॉलिक्यूलर आयन जो उसका कंप्लीट वेट होगा, दैट पीक विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक। Yes, good. Next is elemental analysis. What is elemental analysis and how many types of elemental analysis? सर एलिमेंटल एनालिसिस मींस हम किसी सैंपल में जो वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं भी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वे, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे आईआर हो गया, मास हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, फ्लेम फोटोमेट्री हो गया। इससे हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस, विच एलिमेंट है यूज इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री बाय एलिमेंटल एनालिसिस? सर एलिमेंटल एनालिसिस मेजरली तो सर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रेगमेंटेशन के लिए होता है यूज, मतलब जो टोटल मोलिकुलर मास हो गया, फ्रेगमेंट्स के मास जो बने हैं उनके लिए होता है यूज। रिसर्च अगर अदर एप्लीकेशन दे देखें तो, लाइक एज एज आई डिड इन माय एमएससी प्रोजेक्ट, हमें जो मेटल नैनो, सो हमें डिफाइन करना था कि एक एक क्लस्टर में कितने एटम्स प्रेजेंट है मेटल के। सो हमने जब उसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री किया तो हमें डिफरेंट मास की पीक्स मिली। अब वेरियस ऐसे, मतलब एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हमें मालूम था भी इसमें ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो मेटल के। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने मतलब फाइंड किया कि मतलब एक क्लस्टर जो है उसमें इतने मेटल के एटम्स होंगे और इतने अदर के कंपाउंड्स होंगे। सो एज ए मतलब हम स्पेसिफिक एलिमेंटल डिटेक्शन के लिए आई कैंट थिंक ऑफ एप्लीकेशन जिसमें हमने स्पेसिफिक एलिमेंट को इससे
फाइंड किया वो भी हमने, ये देखा वो भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने डिफाइन किया कि इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है. दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी एग्जांपल, बट या मोलिकुलर वेट से हमने किया, दैट दैट इज डन. इज गुड। लेकिन एलिमेंटल एनालिसिस जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते हैं वो मेनली यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस। यस सर, इनके उसका एलिमेंटल पीक्स के लिए यस. मेनली यूज यही तीन किए जाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड का रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो क्या है, मोलिकुलर आयन पीक्स के अकॉर्डिंग उनको निकालते हैं। There's main three metals used in elemental analysis and mass spectrometry. ऑलराइट सर. This is one set detections of chlorine. What is the formula? What is the ratio of chlorine in by uses elemental analysis? 3:1 सर. Bromine 1:1. 1:1. M+2 M+4 ये क्या है? What is? सर ये इनके जैसे डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, Yes. इनकी आइसोटोपिक पीक्स हैं ये. तो क्लोरीन का जो एक आइसोटोप है जिसका 35.5 है, एक का 37.5 है, ब्रोमीन का ऐसे 78 एंड 81 है. सो Yes. उस रिगार्डिंग में इनकी M+1 M+2 M+4 पीक्स आती हैं. Yes. Good. Basic. Next is nitrogen rule. What is nitrogen rule? कौन सा सर? Nitrogen rule. Nitrogen rule in mass spectrometry. नाइट्रोजन रूल, आई एम सॉरी सर, आई डिडंट हर्ड ऑफ इट. Yes, you have to read. Next is Mac-Lafferty rearrangement. Means mass fragmentation pattern. यस सर. Is what? Yes. Next topic is mass fragmentation pattern. Yes. What is Mac-Lafferty rearrangement? Mac-Lafferty rearrangement is sir, like the in photochemistry we studied Norris type 2 reactions in which gamma hydrogen is interacted with the carbonyl carbon or electronegative atom like nitrogen also, एंड उससे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर फ्रेगमेंटेशन होता है रेडिकल फॉर्म में. Yes. Good. What is meta-stable ion peak? मेटास्टेबल आयन पीक, आई एम सॉरी सर. रिट्रो डील सेल्डर प्रोसेस होती है, रिट्रो इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो व्हाट इज रिट्रो डील सेल्डर प्रोसेस and difference between Diels-Alder reaction and retro Diels-Alder process? सर डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में हम दो जो अनसैचुरेटेड मोइटीज होती है उनको जोड़ते हैं, और रेट्रो डील-ज़ेल्डर में हम ब्रेक करते हैं. एक एक अनसैचुरेटेड मोइटी को हम 4+2 रेशियो में ब्रेक करते हैं. यस गुड. इसमें एक यूज किया जाता है मास स्पेक्ट, कोई भी कंपाउंड है हमें उसे फाइंड करना है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन से.
उसके लिए क्या हम्म। मेजरमेंट, क्या क्या चीज रिक्वायर है, कैसे हम करेंगे? कोई भी कंपाउंड हम फाइंड करना है तो उसको क्या 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 होना चाहिए, देखो यूज मास स्पेक्ट्रोमेट्री से सर, या किससे? इन जनरल? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से या इन जनरल कोई इन डिटेक्शन जनरल करना है? हमें कंपाउंड को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन से डाटा चाहिए जिससे हम कोई भी कंपाउंड को बना सकते हैं, हाउ टू फाइंड इट। सर अगर सबसे पहले तो हमें मतलब ये फाइंड करना होगा कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे पहले आईआर। हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, रेंज आएंगी, बट वो भी इतना स्पेसिफिक नहीं है कि, क्योंकि जैसे कार्बोनिल है उसकी पूरी एक रेंज है। तो उसके बीच में अगर कोई और जैसे सीएन कहा जाता है तो हमें भाई भाई एज स्पेसिफिक नहीं हो सकता सारे एलिमेंट्स के लिए। वो प्रिलिमिनरी ठीक है वो। फिर हम करेंगे सर जैसे ये एटॉमिक अडॉप्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम यूज कर सकते हैं उसमें। उससे हमें प्रॉपर एलिमेंटल एनालिसिस हमें मतलब हमारा हो सकता है। फिर फ्रेगमेंटेशन के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम ये देख सकते हैं, अगर भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो भी किस जैसे जो बॉन्डिंग है वो किस स्ट्रक्चर में है, लाइक वो ईथर है या वो अल्कोहल है। अभी जैसे 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 आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है ना सर। सो हमें एलिमेंट्स मालूम हो जाएंगे, हमें बॉन्ड्स मालूम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें तब तक मालूम नहीं होगा जब जब तक हमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है, लाइक ईथर में अलग होती है, अल्कोहल में अलग होती है। सो ये हमें मालूम होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, क्योंकि इसमें ईथर के और अल्कोहल के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आएंगे। सो इससे ये मालूम हो सकता है। और हमें अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन की जो अरेंजमेंट है उसे फाइंड करने के लिए, कि सी डबल बॉन्ड सी है, सी एन है, सी एच है, कौन कौन सी हैं। और ऑर्गेनिक के लिए सर ऐसे मतलब अगर स्ट्रक्चर एलुसिडेट करना है तो इतना काफी होगा सर। यस, आई आर, यूवी, एनएमआर एंड मास, चार चीज से आप कोई भी डाटा निकाल सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, इसको हम फाइंड कर यस सर। सकते हैं इजीली। यस, गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? Microwave spectroscopy, sir, in this we use microwaves and we deal with the rotational levels. जो मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है हम उससे डील करते हैं यहाँ पे। यस, व्हाट इज द एप्लीकेशन? मेजर एप्लीकेशन इसकी बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस ये फाइंड करने में होता है यूज। या हमने अगर कोई आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया है तो उस पे बॉन्ड लेंथ का उस पे क्या इफेक्ट है, सो उसके लिए होता है यूज। व्हाट इज द सोर्स ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है सर यूज, बस सोर्स है स्पेसिफिक क्लेस्ट्रॉन, पता नहीं पड़ा मैंने। रेडियो फ्रीक्वेंसी, एनएमआर क्या सर? फ्रीक्वेंसी, क्लेस्ट्रॉन। ऑलराइट सर। यस, व्हाट इज माइक्रोवेव एक्टिव एंड माइक्रोवेव इनएक्टिव? एनी सर एग्जांपल? एक्टिव इनएक्टिव किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम तब देखते हैं या बोलते हैं जब वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसे फाइंड कर पाए। लाइक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव हम उसे कहेंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा देने के लिए जो हम रेडिएशन दे रहे हैं उससे उसको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव वो होंगे जिनकी रोटेशन से डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा हो। मतलब जिस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा वही रोटेशन से चेंज हो पाएगा। डाइपोल मोमेंट चेंज होगा एक पीरियोडिक
फैशन में, तो वो जो इंसिडेंट, जो रेडिएशन उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर से इंटरेक्ट कर पाएगा, तभी रेजोनेंस होगा, तभी हमारे पास पीक आएगी। Yes, good. Next is microwave spectra of diatomic molecules. यस सर। Can you explain why formula, any method? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में सर पीआर बैंड्स आएंगे रोटेशन में। जो बीच में क्यू बैंड आता है, एक मतलब एक सेंटर में जो दो दो ऐसे विंग शेप का डेटा आएगा, उसके सेंटर में कोई पीक नहीं होगी। अगर वो सेंटर में एक लॉन्ग पीक होगी, मतलब पी क्यू आ रहा है, तो मतलब वो डायटोमिक नहीं है। अगर सिर्फ दो विंग्स प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। Yes, good. ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर मीटर इनवर्स यूनिट को हम मतलब फाइंड करते हैं, तो इसको कैसे, हाउ टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, किस मेथड से कैसे निकालते हैं? सर डिवाइड कर देते हैं बाय, जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी जूल में होगी। सो उसको एच इंटू सी से, मतलब जो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट थी, एच सी से डिवाइड करते हैं। सो उससे वो जो एनर्जी है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाती है। यस, गुड. व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल्स? तो या डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यस, इसमें दो यूज होते हैं, रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? यस सर। सर इसमें जैसे ये माना गया कि कोई भी बॉन्ड अगर रोटेट हो रहा है, तो वो बॉन्ड एक रिजिड ना होके वो फ्लेक्सिबल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। सो उसके लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। सो इससे क्या हुआ कि जो ओवरऑल एनर्जी है पर्टिकुलर जे लेवल के लिए, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपका जो बी है, वो जो रोटेशन कांस्टेंट है, वो डिक्रीज होगा। सो हमने ये पाया कि जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी जो पर्टिकुलर लेवल्स की रिजिड रोटर में थी, वो नहीं है, उससे कम हुई है। यस, गुड. व्हाट इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर? एनी फॉर्मूला? मास स्पेक्ट्रा सर। यस, मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए नॉन रिजिड रोटेटर, या रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर, एनी स्पेसिफिक पॉइंट, and what is the effect of spectral lines? सर जो आइसोटोपिक मास होता है सर, उससे तो होता है सर, मतलब कि जो जो लाइंस होंगी वो मोर क्राउडेड हो जाएंगी जब अगर हमने जो मास इंक्रीज किया, तो क्योंकि मास इंक्रीज होगा तो जो जो रोटेशन कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा, तो जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। Yes, separation between successive line decrease डिक्रीजेज। steadily with increasing j. यस सर। That's the point. What is the effect of isotopic substitution? सर जो स्पेसिंग होती है लाइंस की, वो वेरी होती है सर। लाइक अगर हमने मास जो कम मास का अगर लगा दिया सब्स्टिट्यूट करके, तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा का लगाया तो कम हो जाएगी। Next topic is rotational spectra of polyatomic molecules. How many types of polyatomic molecules?
in microwave? Polyatomics are